Yes, sorry for the interruption. मैंने recording start किया. Okay. Radius, velocity we were knowing. Today we are going to learn energy. This comes for 4 marks in board exam and entrance में बहुत सारे shortcuts on based on this. Energy is directly proportional to z square and inversely proportional to n square. Z square and n square. Then energy of first orbit, it comes out to be minus 21.7 into 10 raised to minus 19 joule or minus 13.6 electron volt. If you want the energy in terms of electron volt, you'll write like this, minus 13.6. And this is sorry students, there was a call, that's why I was mute. Yes, energy of first orbit is minus 13.6 electron volt. Energy of first orbit is minus 13.6, and in terms of joule if you want, then it is minus 21.7 into 10 raised to minus 19 joule. So those are very important terms. तो हम ये पहले डिराइव करेंगे और उससे बेस्ड हम स्पेक्ट्रम देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. सो आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होगा. एनर्जी 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 डिराइव करना है हमें, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फाइनली टोटल एनर्जी. करेक्ट. सो आप लोगों ने ये पार्ट अगर लिखा हो तो अच्छा होगा आपके लिए. ऑब्वियसली डिराइव कर रहे हैं हम लोग. ऑलरेडी ये लिखा होगा तो ये लिख लो. ओके. सो आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा. सो आई कैन मूव अहेड. Radius, velocity and energy. Radius, velocity and energy. How they arise with principal quantum number and atomic number. Now let's derive energy. फिर z square हम याद नहीं करेंगे, minus m e raised to 4 8 epsilon square n square h square. This is energy. It is directly proportional to z square, inversely proportional to n square, and in terms of joule and electron volt. Okay, so how to find energy? First of all, kinetic energy. What is kinetic energy? Basically half mv square. माइक अलाउड है ना आपको? माइक का प्रॉब्लम है? Yes, you can unmute yourself. Okay, half mv square is the formula for kinetic energy. So हमें फाइंड करना है kinetic energy, तो हमें velocity चाहिए. So half m, velocity का फॉर्मूला क्या है? E square upon 2 epsilon 0 nh. E square upon 2 epsilon 0 nh का स्क्वायर. So half m e raised to 4 2 का स्क्वायर 4 epsilon square n square h square. इसका स्क्वायर किया, so I will get m e raised to 4 to the 8 epsilon square n square h square. So this is the formula for kinetic energy. m e raised to 4 8 epsilon square n square h square. अगर आपने यहाँ z लिया होता तो आपको यहाँ z स्क्वायर मिलता, तो आपको फाइनल फॉर्मूला में z स्क्वायर आता. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, z जो है ना वो हमारे लिए नहीं रिक्वायर्ड है जब तक नहीं पूछा. अदरवाइज z की रिक्वायरमेंट है तो ही लिखने का. कहाँ और कैसे आता है z में स्टार्टिंग लेवल से बताते आ रहा हूँ. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. प्लीज राइट डाउन दिस फास्ट.
Okay, Nitya. Good, Nitya. ओके, आवाज आ रहा है अभी आपको बरोबर? Students, are you able to hear properly? Because I'm using a Yes, sir. headphone. Okay. Kinetic energy का ये expression था. Now potential energy. Potential energy is what? आपने अगर ग्रेविटेशन 11th स्टैंडर्ड में बाइंडिंग एनर्जी लर्न किया होगा तो देर आर फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक में या फिर आपने वर्क डन सुना होगा, वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल. Potential is work per unit charge, the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point against the direction of electric field is electric potential that we know. So ये formula से W is equal to QV आया. But this work done I am saying as energy, potential energy, because this work is stored in the form of energy. That's why I am calling it potential energy. So what would be the expression for potential energy? तो यहाँ charge into potential, charge into potential of nucleus. What is charge on electron? Minus C. Potential of nucleus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R actually फॉर्मूला है, बट यहां मैं Q की जगह न्यूक्लियस है, इस पे प्लस C चार्ज है और R रेडियस है. सो व्हाट आई विल गेट माइनस E स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon 0 R. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. बट ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस है, मुझे रेडियस फॉर्मूला नहीं चाहिए. आई वांट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा रेडियस. मैंने कहा ना आपको ये बहुत अच्छी तरह आना चाहिए. एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई नी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? -4 मार्क का डेरिवेशन आता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सोच के ही करना पड़ेगा. सो आर का वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर और ये ऊपर जाएगा एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर, पाई नी स्क्वायर. तो यहाँ पाई कट हो जाएगा, माइनस m रेज टू 4 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h square to 4 per epsilon square n square h square. This is potential energy in terms of principal quantum number. In terms of principal quantum number, I again repeat कि अगर आपको Z चाहिए, Z, तो न्यूक्लियस में ना Z इलेक्ट्रॉन होते हैं, Z इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी Z प्रोटॉन्स, सॉरी न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स होते हैं. तो Ze चार्ज आएगा, यहाँ Z आएगा, करेक्ट, यहाँ Z आएगा. फिर Z आया था यहाँ बरोबर, पर रेडियस के फॉर्मूला एप्सिलॉन 0 पाई एम ई स्क्वायर के साथ और एक Z आता है, पाई एम ई स्क्वायर के साथ और एक Z आएगा इस रेडियस के फॉर्मूला में, यहाँ Z आता है तो Z स्क्वायर हो जाएगा अगेन. सो अगेन आई एक्सप्लेन यू हाउ दैट एनर्जी में Z स्क्वायर आता है. Z स्क्वायर कैसे आता है, दैट आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग इन एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल. So yes, we are not writing presently that Z आपको कहाँ कब कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, आई एक्सप्लेन. सो पोटेंशियल एनर्जी मिल गया. अभी हमारा थर्ड पार्ट, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल एनर्जी. आई होप दिस मच पार्ट यू हैव रिटन. कुछ लोग है ना, मैं सिखा रहा हूँ तभी लिख रहे हैं. इट विल बी नॉट हैपन बट आई कांट हेल्प. यस, फास्ट राइट डाउन.
ओके, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बस सिंपल सा है। काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर सा है, हमें वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, पोटेंशियल चार्ज इनटू पोटेंशियल आया। अगर जिन्हें ये नहीं पता तो ये डेरिवेशन ही नहीं होगा। और सबसे ट्रिकी इसमें पोटेंशियल एनर्जी, ये भूल जाते लोग। ये भूल गए तो फिर ये डेरिवेशन में मिस्टेक हो जाएगा। फिर ये पोटेंशियल एनर्जी रेडियस के फॉर्म में चाहिए, रेडियस के फॉर्म में चाहिए तो ये है, बट अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। आपको n सफिक्स समझ में आ रहा होगा, n इज अ सफिक्स। So we got potential energy minus me raised to 4 8 epsilon square 4 epsilon square n square s square. Yes, potential energy multi kinetic energy मिल गया। Now total energy. How to find total energy? Total energy is sum of kinetic plus potential. What is kinetic? E square upon 8 epsilon square n square s square. आपने अगर चेक किया हो तो potential is minus यहाँ plus me raised to 4. हाँ, ये माइनस me raised to 4 8 epsilon square n square h square। ये दोनों वैल्यू समझ में आया? सर हाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है ना माइनस एम ई रेज टू 4 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर वहां पे लिखा है आपने। हाँ, और आपने वहां पे 8 लिखा था, अभी आपने किया। ओके, थैंक यू माधुरी। यस, 4 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा। पोटेंशियल एनर्जी 4 आ रहा है, काइनेटिक में 8 था। नाउ कॉमन क्या है? 4 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। me raised to 4 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो इधर बचता है 1/2। 8 है ना, तो 4 टू जा 8 1/2। और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और ये पूरा टर्म बाहर आ गया। व्हाट इज हाफ माइनस 1? हाफ माइनस 1 minus half. minus half, so it become minus me raised to 4 to the 8 epsilon square n square h square. This is total energy. अगर आपको याद होगा ई स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर आएगा, तो यहाँ भी जेड स्क्वायर आने वाला है। So this is total energy. I am just writing this as energy of electron in nth orbit. Energy of electron in nth orbit. We derive this formula. याद रखना पड़ेगा, जितना 3 बोल रहा हूँ ना, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, बाकी सब ठीक है, बट ये 4 याद रखने पड़ते हैं। 3 सॉरी, माइनस me raised to 4 8 epsilon square n square h square सेम एज माइनस me काइनेटिक एनर्जी। हाँ, सेम काइनेटिक एनर्जी सेम, बस माइनस साइन वहां पे कॉमन हो गया ना। वेरी गुड। आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में, मैंने अगर ग्रेविटेशन आई एम नॉट श्योर किसने सिखाया था, तो उसमें भी है ना, काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल का रिलेशन आता है। ऐसा काइनेटिक ऐसा मिलता है, इफ यू रिमेम्बर, प्लस जी, याद नहीं आ रहा मुझे। काइनेटिक क्या था? एनीवन रिमेम्बर? R, gmm upon 2r, potential above the surface, gmm upon minus gmm upon r, और टोटल एनर्जी ये हाफ माइनस 1 माइनस हाफ आया था, तो माइनस gmm upon 2r। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल में, टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक, और ये इसका पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ दिस, इसका डबल। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये आता है। तो ऐसा रिलेशन सिर्फ ग्रेविटेशन में भी था, बट प्रोवाइडेड इट इज रिवॉल्विंग अबोव द सरफेस, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अबोव द सरफेस। ये काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था, ग्रेविटेशन 11th स्टैंडर्ड चैप्टर। बट यहाँ
यहाँ भी वैसा ही रिलेशन है। काइनेटिक अगर देखो तो आपको मिलेगा me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। आपको पोटेंशियल देखोगे तो आपको मिलेगा -me⁴ 4 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। एंड टोटल एनर्जी देखोगे तो -me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो आप अगर ये सब कंपेयर तो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, दोनों में से प्लस माइनस का फर्क। पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी डबल है, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा। इसको टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई, 2 यहाँ कट हो जाएगा, 4 आएगा। देन पोटेंशियल टोटल, काइनेटिक टोटल, एंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल में रिलेशन। So potential energy is minus time double of kinetic energy. So ये रिलेशन है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये 10 है तो ये -20 है, और इन दोनों का एडिशन, व्हाट इज 10 - 20? 30. हाँ 10 - 20, 30. 10 - 20 -10. -10. Yes. तो ये और ये इसमें रिलेशन सिर्फ माइनस और प्लस का है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये इसका डबल है। 10 - 20 and -10, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट क्या है। सिंपल लॉजिक से ये कंसेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी का एक आगे और एक स्टेप है। इलेक्ट्रॉन का भी बाइंडिंग ग्रेविटेशन में और सैटेलाइट का बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ और एक स्टेप होगा, बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और यू कैन से बाइंडिंग एनर्जी सेम एज काइनेटिक एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी तो आपको यहाँ से प्लस करना है, तो उसके आगे लिख सकते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। सर यस, कोई कुछ बोल रहा है? सर आपने वो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 काइनेटिक एनर्जी लिखा है, वो उल्टा आएगा ना? नहीं, बरोबर है। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 4 जा 8, तो 4 आएगा ना यहाँ। नहीं सर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 काइनेटिक एनर्जी लिखा है आपने, वो थर्ड वाला। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा 8, -2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा ना। हाँ सर, हाँ। ये एग्जाम्पल भी क्लियर करता है, ये भी कंफ्यूजन क्लियर करता है। ये सारी चीज़ें आप अगर लिख लेते हो तो आपको बहुत सारे सम्स, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रॉन्स का डबल एक साथ, खुशबू एक साथ 2 निशान हो जाएंगे। बाइंडिंग एनर्जी का भी हो जाएगा, का भी हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी का भी, और ग्रेविटेशन का भी, और एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर का भी। ये दोनों कंसेप्ट हो गए। तो हाँ, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है +me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। प्लस में आएगा, प्लस में, +me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर। इससे नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब केमिस्ट्री में इसे क्या कहते हो पता है? व्हाट यू कॉल इन दिस टर्म इन केमिस्ट्री? बाइंडिंग एनर्जी की जगह हम उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। नहीं दे रहा है आपको? Yes, sir. आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, आपने अगर वर्ड सुना होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। आप उसे एंथैल्पी भी कहते हो क्या कुछ? आयनाइजेशन एंथैल्पी, वी कॉल्ड इट आयनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो। Yes, sir. यस, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन जो कहते हैं ना, दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज एनर्जी। हाँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी मैं कहता हूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं कुछ लोग। तो अगर ओके, मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल वर्ड यूज करूँगा बाद में, बट आपको ये समझना है बाइंडिंग एनर्जी। इसके बाद अगर पूछा है इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो प्लस में आएगा उसे।
तो मुझे लगता है काइनेटिक पोटेंशियल टोटल एंड बाइंडिंग आप सबको समझ में आया होगा. राइट डाउन दिस एंड यू कैन राइट दिस ऑल्सो. एक साथ बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं इसमें क्लियर. काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाउ इट डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जेड का रिलेशन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, इसके अंदर अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. खुशी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ये टॉपिक है, आपको अगर पता हो एटम मॉडर्न फिजिक्स का, उसके अंदर भी ये सब यूज होता है, ये फॉर्मूला एनर्जी का. वो ऐसा पॉस्टुलेट है, मतलब एनर्जी इज एच न्यू होता है ना, एच न्यू, उसी को आगे ये यूज करते हैं, न्यू न्यू इज सी बाय लैम्बडा एंड सी को फिर लैम्बडा उस रिलेशन कर यूज करके बनाते हैं. तो वो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन का एक 4 मार्क का क्वेश्चन 100% आता है नीट में. दैट आल्सो हेल्प्स अस. मुझे लगता है सबको समझा, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टॉपिक्स थोड़े इंटरेस्टिंग है, नंबर्स है, डेरिवेशंस है, फॉर्मूलाज है, बट जो स्टार्टिंग रेगुलरली देख रहा है उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. काइनेटिक पोटेंशियल टोटल एंड बाइंडिंग. I am taking care of recording this all and keeping this on YouTube so that anytime you can revise. Okay, done. So kinetic potential total binding energy ये लर्न करने के बाद हमें लर्न करना होगा ये कंसेप्ट की एनर्जी का फॉर्मूला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा, तो माइनस m⁻⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. आप n की जगह क्या लिख रहे हो, 1. क्यों लिख रहे हो 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का है. फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है, n का वैल्यू 1 होता है. किसके लिए आप डिराइव कर रहे हो, z1 ले रहा हूं मैं, हाइड्रोजन एटम के लिए. तो सर फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस m⁻⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर. इसे क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. इसे इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं पहली बार सब वैल्यू लिख के दिखा रहा हूँ. -31 1.6 इंटू 10⁻⁻19 8 एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12 and Planck's constant 6.63 into 10⁻⁻34 square m⁻⁴. अगर आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो 21.7 into 10⁻⁻19 जूल मिलेगा. वी आर नॉट लर्निंग लॉग. हम लॉग कैलकुलेशन कर सकते हैं इसे, बट मैं लॉग नहीं सिखा रहा आज. सब्स्टिट्यूट करने के बाद लॉग सबको आता है, 11th स्टैंडर्ड में लॉग पढ़ा है. तो लॉगरिथम वाला चैप्टर नहीं है ये. तो आपको ये पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगर ये बाहर करते हो अगेन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, अब चाहो तो मैं सिर्फ पावर आपको बता सकता हूँ. पावर -31 -68 -31 सॉरी एडमिन मिस्टेक, 24 80 76. हाँ बरोबर है, 19 4 76. Yes, sir. Yes. -12 24 and 34 मतलब 68. 68 and 24 कितना होगा, 68 and 24 72 82 92 10⁻⁻92. 31 and 6 plus 1 7 7 and 107 -107. अभी 92 और 107 में कितना डिफरेंस है, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, नहीं ना. -107 प्लस 92 का 8 और ये 7, 8 और 7 15 -50. कुछ तो गड़बड़ हुआ है. ओके इसका पावर लेके ना हम सिंप्लीफाई करने के बाद 9.1, इसमें 1.6 का 10⁻⁴ मतलब और नंबर छोटा हो जाएगा. ये 8.85 ये बड़ा नंबर मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा नंबर मिलेगा. सिंप्लीफाई करेंगे तो -19 आएगा. ये -19 आता है.
अब चेक कर सकते हो कैलकुलेटर लेके, बाकी सब नंबर्स है ना 9.1, 1.6/4, 8.85 का स्क्वायर, 6.63 का स्क्वायर, 8 से मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। ओके, सो ये मिला है इन जूल, बट वी वांट द यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज स्मॉलर देन दिस, क्योंकि ये बहुत छोटा है ना, तो हमें उससे कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देयर इज कंसेप्ट ऑफ, ये स्टूडेंट ध्यान देना, कन्वर्टिंग जूल इन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10⁻⁻⁹ जूल। अगर आप ये समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा यूनिट है एनर्जी का, एनर्जी का यूनिट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10⁻⁻⁹, बहुत छोटा यूनिट है ना, इसीलिए -19। तो अगर कोई पूछे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे ले लेता हूँ जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जूल जूल कट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूमरेटर में आएगा, जूल जूल कट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूमरेटर में आएगा, -19 कट हो जाएगा, 21/1.7, आप अप्रोक्सीमेटली देख लो तो वो 13 आता है। आप लॉ, आपके पास मोबाइल है, आप कैलकुलेट करने में एक्सपर्ट हो। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। वी कैन रिमेंबर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों आता है? फॉर हाइड्रोजन एटम एंड फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो उस रिवॉल्व करते समय उसकी काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी, और टोटल एनर्जी कितनी होती है, कितनी होती है सर? ये काइनेटिक है, ये टोटल एनर्जी, काइनेटिक क्या होगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना आसान क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी -27.2, डबल इसका, -27.2। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, +13.6। तो काइनेटिक, पोटेंशियल, बाइंडिंग, टोटल, ये सब फाइंड कर सकते हैं इससे। ये अगर फर्स्ट ऑर्बिट का मालूम है तो सब मिल जाएगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सबके लिए फाइंड कर सकते हैं। पहले एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट तो सीखे, और हाइड्रोजन एटम, रिमेंबर दिस इज व्हाट फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इसीलिए मैंने Z1 लिया है, और फर्स्ट ऑर्बिट इसीलिए 1 लिया है। आप लोग ये लिख सकते हैं फटाफट, याद रखना है खुशी, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया लिखे? ओके, डन। एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। नाउ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आने के बाद हमने लास्ट टाइम क्या किया था, वही सारी कहानी वापस रिपीट करनी है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। n² को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कैसे लिखेंगे? एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या होगा, इट इज E1/n²। What is the energy of electron in first orbit? E1/n². What is E1 minus 13.6? तो हम किसी भी ऑर्बिट का फाइंड करना है, ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये सेम फॉर्मूला रेडियस का ऐसा था, ये सेम फॉर्मूला वेलोसिटी का ऐसा था। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। ओके, सो व्हाट इज एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट? E1/2 का स्क्वायर 4,
third orbit E1 divided by 9, fourth orbit E1 divided by 16, fifth orbit E1 divided by 25, sixth orbit E1 divided by 36, and so on. E infinity orbit 0 electron volt, क्योंकि 1 upon infinity is 0. Okay, what is minus 13.6 divided by 4? Minus 13.6 divided by 9, minus 13.6 divided by 16, minus 13.6 divided by 25, minus 13.6 divided by 36 लिखा है कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लो. ये 5-4 है. क्या करना है? 13.6 डिवाइड बाय 4 करना है. माइनस की जरूरत नहीं, आप सिर्फ वैल्यू देखो. डिवाइड बाय 4 13 3.4 1.51 0.85 0.54 0.37. अगर गलत है तो बताओ मुझे, नहीं तो फिर इट्स ओके. कैलकुलेटर आपको मालूम है ना, मोबाइल में होता ही है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, इंफिनिटी ऑर्बिट. सिक्स्थ ऑर्बिट में थोड़ा सा डाउट है, करेक्ट है क्या वो? 36 से डिवाइड करके चेक करो. नहीं है. ओके. बाकी लोग इतने आलसी है ना, कोई चेक भी नहीं कर रहा है. वो दूसरा करेगा ना, मैं क्यों करूं? तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बरोबर है. करेक्ट सर. ओके गुड, थैंक यू. तो चेक करो मैंने कैसे खतरनाक वे से याद रखा है सारी वैल्यूज. फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. आपने ये ऑब्वियसली एनर्जी लेवल डायग्राम अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको 11 में था तो आपको ये याद रखा होगा. नहीं याद रखा तो याद रखना बहुत जरूरी है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. तो जैसे जैसे एनर्जी, जैसे जैसे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है? -13 के बाद -3.4 बढ़ रही है कम हो रही है? माइक का पैसा लेना स्टार्ट किया ना मैंने. हाँ, इंक्रीज हो रहा है. बढ़ रही है. इंक्रीज हो रहा है. 13.6 से 3.4 नहीं हो रहा है. -13.6 से -3.4 इंक्रीज. सबसे हाईएस्ट जीरो इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी उल्टा है, बाइंडिंग एनर्जी प्लस में होता है, तो सबसे ज्यादा ये होगा. अब क्या हो रहा है, ये सबसे कम एनर्जी और ये सबसे ज्यादा एनर्जी. टोटल एनर्जी. बट अबाउट बाइंडिंग एनर्जी इज रिवर्स, प्लस में आएगा. तो प्लस 13.6 और 0 ऐसे अगर प्लस 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 करते गए तो 13.6 के बाद 3.4 कम हो रहा है. सो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेस, टोटल एनर्जी इंक्रीजेस. बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेस, टोटल एनर्जी इंक्रीजेस. सबसे पास वाला न्यूक्लियर सबसे ज्यादा बाउंड होगा, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी. दूर जाओगे वैसे बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड रहता है, सब प्लस में आएगा. तब बाइंडिंग एनर्जी प्लस में आएगी. टोटल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. जैसे क्योंकि पास वाला है ना, उसकी काइनेटिक भी कम, पोटेंशियल भी कम. जैसे दूर जाएगा उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज होते जाएगी. सॉरी हाँ, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों कम है. काइनेटिक पोटेंशियल जो भी रहेगी उसका टोटल एनर्जी यहाँ का जो है वो क्या होगा? नियर बाय का टोटल एनर्जी कम है. फिर और आगे जाएगा, बढ़ेगा और सबसे आखिरी है उसका 0 है. ये सबसे मैक्सिमम टोटल एनर्जी. मुझे लगता है आपको क्लियरली मेरे सेंटेंस समझ में आ रहा है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी. यस खुशी, ये टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी और बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होगी. अब काइनेटिक और पोटेंशियल का क्या होगा वो भी आप गेस कर सकते हो, क्योंकि काइनेटिक भी प्लस में आएगा. याद रखो तो काइनेटिक और बाइंडिंग सेम है. उसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी अगर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होता है.
सिर्फ क्यों काइनेटिक एनर्जी कम होता है, ऐसे थोड़ा और बताइए क्या? यस, वेलोसिटी कम हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट का सेकंड में डिवाइड बाय 2, थर्ड में डिवाइड बाय 3, तो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड कम होते जा रही है घूमने की। अगर स्पीड कम होते जाएगी तो क्या होगा? स्पीड कम होते जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। I hope everyone is understanding a very small topics in that. काइनेटिक वेलोसिटी से कैसे रिलेशन है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जैसे दूर जाओगे ना सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर एज वी आर, आपने देखा होगा अर्थ में कि आप जैसे हाइट पे जाते हो जैसे उसकी पोजीशन बढ़ती है, पोजीशन बढ़ेगी तो हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बढ़ रही है उसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। आप चेक कर सकते हो फर्स्ट ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, -27.2, इसका डबल। सेकेंड ऑर्बिट का -6.8, थर्ड ऑर्बिट का इसका डबल -3.02, फोर्थ ऑर्बिट का इसका डबल -1.7। मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है ऐसा मत सोचो। 1.08 डबल मेरे को आता है। सिक्स ऑर्बिट -0.74। आई एम सेइंग नंबर को डबल करना, पैसे डबल नहीं करना। 37 का डबल 74, यस। और लास्ट ऑर्बिट का इंफिनिटी का 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व दैट इट इज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ये पोटेंशियल एनर्जी रॉन्गली रिटन, सॉरी, potential energy increases, total energy increases, kinetic energy decreases, binding energy decreases, kinetic binding दोनों दोस्त, potential total दोनों दोस्त, kinetic और binding ये दोनों दोस्त है, पॉजिटिव में है। पोटेंशियल और टोटल एनर्जी दोनों नेगेटिव है, तो अगर n बढ़ता है तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों n बढ़ेगा, दूर जा रहे हो तो उसको डिक्रीज होता है, और अगर यहाँ n बढ़ता है तो ये इंक्रीज। यस, तो ये चार चीजें शॉर्टकट एंट्रेंस काफी कुछ बता रहा है। Yes, I cannot help with this synchronize. चेक करो अभी नित्या, सिंक्रोनाइज है। ओके, सो दिस इज, अगर मैं मोशन में मतलब ज़्यादा ऐसा मूवमेंट करता हूँ ना तो वो चेंज होता है थोड़ा सा, स्लो मोशन में पड़ा होगा तो होगा। ओके, आपको मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स सब बताए, आपको पता चला होगा एनर्जीज कैसे डिक्रीज इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज कैसे होती है, रेडियस वेलोसिटी एनर्जीज। आपने ये लिख लिया हो तो आई कैन मूव अहेड। कुछ लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, बार बार लीव कर रहे हैं। सम पीपल्स आर लाइक दैट, डटे रहते हैं सर हम लोग, कब है हमारा नेटवर्क नहीं जाता। दीक्षा, पूर्वी, पूर्वी आर यू देयर? यस सर। ओके, ओके, वेरी गुड। सो मुझे लगता है काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल, बाइंडिंग एनर्जी ये सब आप लोगों ने लिखा होगा, और ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। ये चैप्टर जो आप आपकी टेक्स्ट बुक में नोट्स में देखोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा सब कुछ बताया ही नहीं। ओके, कहाँ गए हम? एनर्जीज,
काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। नाउ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट हमने लर्न किया, इट इज बेसिकली z² / n²। पर अगर हाइड्रोजन लाइक एटम कहा तो क्या करना होगा सर? सिर्फ सिंपल है, z का वैल्यू 2 लिया सपोज, हीलियम आयन, तो क्या होगा? एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू -13.6 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये होता है 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 एंड 53.4, 6 4 जा 24, 54.4 सर 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। आप ये नंबर याद रखो ना, ये नंबर थोड़ा बहुत, मतलब रट्टा नहीं करना, ये नहीं रट्टा करना, मैंने जो पहले बताए थे वो ठीक है, बट आप अगर ये नंबर भी थोड़ा बहुत याद रखो ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कौन से ऑर्बिट का होता होगा। सेकेंड ऑर्बिट का क्या होगा? सिर्फ एक ही करेंगे हम, हाइड्रोजन लाइक वाला जेड, हाइड्रोजन लाइक एटम वाला हम z = 2 वाला ही कर रहे हैं। तो हीलियम आयन, वैसे हीलियम आयन का सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या होगा? तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना होता है? -3.4 होता है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, सो -13.6। आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये नंबर वापस आ गया फर्स्ट ऑर्बिट वाला, क्योंकि आपने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया था ना इसको। अब ये 4 इससे ये कैसे आया था? 4 से डिवाइड करके, तो अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30.6 क्या आ जाएगा? आपको ये नंबर याद रह सकता है कि हाँ, हाइड्रोजन लाइक एटम हीलियम आयन का सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। कुछ कर सकते हैं, इतने सारे नंबर्स है सर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, एटलीस्ट 2-3 भी किया ना, वो ये लिख के एक टेबल बना के रखा ना, बहुत फायदा होगा। कैलकुलेटर से तो करना है, कितना टाइम लगेगा? हाइड्रोजन का हो गया, हीलियम लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम में हीलियम आयन, लिथियम आयन, बोरॉन आयन, बेरिलियम बोरॉन, 1 2 3 4 5 भी किया ना आपने तो भी आपको नंबर दिखेगा ना टेबल में, तो काम आएगा। बट इट इज नॉट अ टीडियस वर्क, इट इज ओनली द कैलकुलेटर वर्क। अगर ये नंबर बना के टेबल बना के रखा, एग्जैक्ट वैल्यूज है, ये कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है यहाँ। तो एनर्जीज का ये रेशियो क्या था? आपको लास्ट टाइम भी याद होगा, मैंने ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा था, Q² / P²। यस, Q² मैं आपको हर बार ऐसा रिलेशन, क्यों? बिकॉज ऐसे रिलेशन हमें यूज करने पड़ेंगे फॉर न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू। 7th ऑर्बिट का एनर्जी दिया, 5th ऑर्बिट का निकालो, 7th ऑर्बिट से 5th का निकालना है। मुझे रट्टा बोला होता ना तो मैं जरूर डायरेक्ट करता हूँ। अभी आप बोलोगे सर हमें 5th और 7th का, सपोज 3rd और 4th का पूछा है, सर हमने 3rd रट्टा किया है, 4th भी रट्टा किया है, पर आपको हाइड्रोजन एटम नहीं बोला, हाइड्रोजन लाइक एटम बोला। अब कहाँ हाइड्रोजन लाइक एटम कौन सा है मालूम नहीं हमें, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम बोरॉन है, तो क्या करेंगे? हमें बोला 3rd है 4th निकालो, 3rd है 4th निकालो, तो हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? 3rd ऑर्बिट का दिया, 4th ऑर्बिट का पूछा है, तो आप, या 3rd का दिया है, 5th का पूछा है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। फिर आप बोलोगे सर हमें 1 2 3 4 5 आप बाय हार्ट है, -13.6, -3.14, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54, ये 5 का मालूम है हमें, तो हम ये 5 का मालूम है पर हाइड्रोजन एटम, बट हाइड्रोजन लाइक एटम का नहीं मालूम, तो रेशियो काम आएगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुझे लगता है सबको काइनेटिक पोटेंशियल, टोटल बाइंडिंग एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और एक टर्म है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहा मैंने, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा। फर्क सिर्फ इतना सा है, व्हाट इज दैट डिफरेंस? -13.6 वोल्ट आएगा बस, -3.4 वोल्ट आएगा, -1.51 वोल्ट आएगा, -0.85 वोल्ट आएगा, -0.54 वोल्ट आएगा, -0.37 वोल्ट आएगा। वोल्ट, क्योंकि आपको पोटेंशियल पूछा है। कैसे सर, ऐसा कैसे होता है? तो आपको पूछा है ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, बरोबर। आपको पोटेंशियल पूछा है तो आप चार्ज से डिवाइड करोगे। चार्ज क्या है? 1.6 × 10⁻⁹ कन्वर्ट करोगे और सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको वोल्ट में मिलेगा। बट मैंने तो आपको एक शॉर्टकट सिखा दिया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज जस्ट
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के वोल्ट लिखा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग हो गया ये टॉपिक। काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल, बाइंडिंग, आयनाइजेशन पोटेंशियल, हम सब इलेक्ट्रॉन्स का फाइंड कर सकते हैं बोर्स ऑर्बिट। यू कैन राइट दिस पार्ट आल्सो। अब हम 52 है, 8 मिनट प्लीज टिके रहो, कुछ लोग नेटवर्क के कारण अटक रहे हैं। 8 मिनट है, सिर्फ 8 मिनट में हम एक और नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लर्न करने वाले हैं। एंड नहीं कर पाऊंगा मैं, वो खत्म नहीं कर पाऊंगा टॉपिक, मैं सिर्फ बता पाऊंगा आज। तो आई थिंक दैट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट इन दैट? सो ट्रांजिशन जो रहता है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इससे आता है स्पेक्ट्रम। इसे हम हाइड्रोजन का पढ़ते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंट्रेंस में 2000, आई एम सेइंग 2000, सो 2020, मैंने अपना करियर 2000 में स्टार्ट किया था, 20 साल हो गए, मतलब ये टुडे दिस ईयर इज 20 ईयर। तो 2000 में जब मैंने आई कंप्लीटेड माय 12th एंड इमीडिएटली स्टार्ट टीचिंग, तो वहां से मैंने हर साल देखा है, एवरी ईयर आई ऑब्जर्व दैट कि ये टॉपिक जो है वो क्वेश्चन नीट, जेई, नीट नहीं था पहले, एआईपीएमटी था, जेई नहीं था वहाँ पहले, एआई ट्रिपल ई था, जेई एडवांस नहीं था, वहाँ कुछ अलग नाम रहते थे। तो और सीईटी, जब सीईटी जहाँ से शुरू हुआ, तब जब वहाँ से इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है और आया ही। 12वीं बोर्ड एग्जाम में भी इसके ऊपर टॉपिक पे क्वेश्चन आया। क्या टॉपिक है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और मैंने जो शॉर्टकट बताऊंगा, जो आपको जिस तरह से ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ 5 सीरीज नहीं, लेवन बाल्बर पास्चर ब्रैकेट पीफन नहीं, और उसके हर सीरीज का, हर एटम्स का, हर ट्रांजिशन का वेवलेंथ कैसे याद रख सकते हैं, वो भी अगर बताऊंगा तो यू वुड बी ऑलवेज इम्प्रेस। ये सब खतरनाक टॉपिक है, यू वुड ऑलवेज लव दिस टॉपिक, नंबर वाइज, कंसेप्ट वाइज। केमिस्ट्री भी बहुत सालों का, मतलब इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कनेक्ट होता है, पर वो बाद में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या? तो अब मैं लिखने वाला पार्टिकल को समझाता हूँ पहले कि हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर आते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, PHOTON, प्रोटॉन नहीं, फोटोन। फोटोन का एनर्जी h न्यू होता है, h न्यू। तो न्यू क्या है? न्यू इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? c बाय लैम्बडा। तो अगर हम लैम्बडा यहां लें, तो हर एक ट्रांजिशन का आपको अगर बोर्स थर्ड पोस्टुलेट लिखता हूं मैं, E2 माइनस E1, तो कोई भी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब करेगा, तो हर ट्रांजिशन का हर एक अलग अलग लाइन दिखेगा। ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं। रंजीत का लास्ट टाइम का डाउट थी सर, फर्स्ट लास्ट टू लास्ट लेक्चर का, फर्स्ट ऑर्बिट ही होती है, एक ही ऑर्बिट है, तो वो हायर एनर्जीज में जाता है बिकॉज ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट से जब वो लोअर एनर्जी में जंप करेगा, तब वो जो फोर्थ से थर्ड, फोर्थ से सेकेंड, फोर्थ से वन, फोर्थ से फिफ्थ, या मतलब अलग अलग ऑर्बिट, सॉरी लोअर से हायर, हायर से लोअर, उल्टा नहीं। तो अगर वो जंप करेगा ना, तो हर एक ट्रांजिशन करस्पॉन्ड्स टू अ सिंगल वेवलेंथ, हर एक ट्रांजिशन करस्पॉन्ड्स टू अ सिंगल वेवलेंथ। तो ऐसे बहुत ट्रांजिशन है, तो बहुत सारी वेवलेंथ होगी, और बहुत सारी वेवलेंथ जो रहेगी, बहुत सारी जो वेवलेंथ रहेगी, वो सारी एक साथ टुगेदर जो ग्रुप बनेगा, उसे हम कहते हैं सीरीज, लेमन सीरीज। और ये बहुत सारी सीरीज जो है वो टुगेदर वी कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। So this is learned for hydrogen, that's why it is called hydrogen spectrum. Why origin of hydrogen spectrum क्यों हुआ?
राज, व्हाई द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हुआ? बिकॉज ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो वो हुआ ऐसे कि जब इलेक्ट्रॉन्स हायर से लोअर जंप करता है तो एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन का फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा ये मिला। तो अगर हर ट्रांजिशन को अलग अलग वेवलेंथ, तो देयर आर मेनी लाइंस विच आर करस्पॉन्डिंग अ सिंगल वेवलेंथ, बहुत सारी लाइंस है अलग अलग वेवलेंथ्स की, तो बहुत सारी लाइंस टुगेदर कॉल्ड सीरीज, and there are many series, Lehman, Barber, Paschen, Beckett, Tiefenbach, ये सारी series together form spectrum, and this spectrum was only learned for hydrogen atom, that's why called hydrogen spectrum, and this was called the origin of hydrogen spectrum. Question is asked, पहला छोटा क्वेश्चन है, what is origin of hydrogen spectrum? कहाँ से origin हुआ? बायो में रहता है ना origin, evolution है, यहाँ origin of hydrogen spectrum होता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये रीजन की तरह। अब यही फंस गया भोर यहाँ फंस गया, क्योंकि उसने कहा कि ये ट्रांजिशन का एक लाइन होना चाहिए, बट जब हम आगे और रिसर्च कर रहे हैं ना, तो हमें और उस लाइन के पास और 2-3 लाइन मिल रही है। मतलब इसने कहा एक ही वेवलेंथ होगी, सेकेंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा सिंगल वेवलेंथ होगी, बट क्या देखा हमने, नहीं, 2 लाइन्स थी या 3 लाइन्स थी। और सर सिंगल होनी चाहिए ना, सेकेंड से फर्स्ट जंप करेगा तो सेकेंड से फर्स्ट जंप करेगा तो एक सिंगल वेवलेंथ होगी। तो आपका कहना था, आप जो एक लाइन बता रहे थे बरोबर था, फिर भोर गलत क्यों हुआ? बिकॉज उसने तो सब ऑर्बिट के बारे में या फिर सब सेल्स के बारे में बोला नहीं, सब शेल्स। तो आप फर्स्ट ऑर्बिट में हो तो प्रॉब्लम नहीं है, एस ऑर्बिट ही है, सब शेल है। बट पी और सॉरी सेकेंड ऑर्बिट में जाओगे तो एस और पी 2 और 6 8 होते हैं ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स। आप समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत कि सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में 2 था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक सेल में नहीं है, वो 2 सब शेल्स में है, एस और पी में। तो एस से भी जंप कर सकता है और पी से भी जंप करेगा। एस और पी दोनों अलग अलग लेवल होगी, वहां से जंप करेगा तो अलग अलग एनर्जी निकलेगी, बट भोर बता नहीं पाया। थर्ड ऑर्बिट में एस पी और डी भी आएगा, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन 2 6 और 8 2 6 और 10 डी में 10 होते हैं, 2 6 एंड 10। आई होप दैट आपको पता है ये सब। और एफ में 14, मुझे भी थोड़ा केमिस्ट्री आता है। एसपीडीएफ, तो ये एसपीडीएफ सब शेल के बारे में बोल ही नहीं पाया कौन, भोर। उसकी हिसाब से तो फोर्थ ऑर्बिट में सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, तो वहां से जंप करेगा तो एक ही लेवल आना चाहिए, बट उसमें भी तो 4 सब शेल है, समझ रहा है? एक ही फ्लोर पे 4 अलग अलग डिवीजन है। फ्लोर समझता है ना, फ्लोर में आपको आइडिया दे रहा था राज, करेक्ट? यू रिमेंबर 4 पार्ट्स है उसमें, तो यहाँ 4 पार्ट्स, मतलब एसपीडीएफ चारों अलग अलग होगी तो क्या होगा? एसपीडीएफ तो हर एक का लेवल से अलग अलग इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये तो ड्रॉबैक था बोर्ड्स का, बट हमें अभी ड्रॉबैक क्यों बेचारे को लेने का? हम पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा है, इसलिए जो बताया वो 99% करेक्ट था, जब तक हमें पता नहीं था कि उसके अंदर सब शेल्स भी होती है। बट बाद में तो सब शेल्स पता होने के कारण वो सब ड्रॉबैक आ गया, उसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स। स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, सिंगल लाइन है ना, वो 2 लाइन में दिखती है, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है ना एस और पी में, तो सिंगल लाइन दिख रही थी। पर जैसे मैंने एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिया ना, किसको? स्पेक्ट्रम को। जो स्पेक्ट्रम आ रहा था ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो क्या होगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना तो एस और पी ज्यादा सेपरेट हो गए, और उसके कारण 2 लाइंस जो है ना, पहले जो एकदम ओवरलैपिंग लाइन थी, वो 2 सेपरेट क्लियरली दिखने लगी। इससे इस इफेक्ट को कहते हैं, थोड़ा अजीब नाम है, ज़ी-मैन इफेक्ट। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। This is why the scientist who has given this effect, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो स्प्लिटिंग होता है उसे ज़ी-मैन इफेक्ट कहते हैं, ज़ी-मैन इफेक्ट। और स्टार्क इफेक्ट व्हेन इट इज अप्लाइड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब जो ड्रॉबैक आया ना, उसके बारे में हम लर्न नहीं कर रहे, हमें हाइड्रोजन सिस्टम लर्न करना है। यही सेम कंसेप्ट आपको यूज होगा। अभी लास्ट 1 मिनट है, ऑलरेडी 7 बज गए। तो ये जो है ना HC जो है ना, HC का वैल्यू है मेरे पास 12420, और ये E2 माइनस E1 है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में ये काम आएगा डायरेक्टली। आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसे एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, आई एम नॉट श्योर नैनोमीटर है। ये क्या है सर? आपने ये फॉर्मूला समझा है नहीं, क्या है ये HC जो था ना, HC प्लैंक कांस्टेंट मुझे मालूम है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट मालूम है, इसे सब्स्टिट्यूट करके उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम मिनट में। अब क्या होगा पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली मुझे वेवलेंथ मिलेगा एंगस्ट्रॉम मिनट में। अगर एनर्जी दिया है सपोज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, डायरेक्ट वेवलेंथ मिलेगा, डायरेक्ट वेवलेंथ मिलेगा। ये शॉर्ट है, अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो मैंने कहा ना हमारा 7 तो बच गया है। 12420 मिनट डिवाइडेड, ये जो नीचे था वो एनर्जी जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो शॉर्टकट कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं, तो हम सेकेंड आर का वैल्यू है ना, मैं आपको लास्ट लेक्चर के लिए याद करने के लिए बोलता हूँ, सॉरी 1/r। ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आर क्या है, आप ये लिख के रखना। दिस टॉपिक, ये आर है रेडबर्ग कांस्टेंट और इसका वैल्यू है 9/12, 9/12। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।